موجود ہیں سمر فاؤنڈیشن ہاؤس میں، جہاں پہ آج کشمیر کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تو کافی یہاں تعداد میں سیاسی اور ورکرز جماعتوں نے حصہ لیا، تو آئے ان سے بات کریں گے کہ پوچھیں گے کہ سمر فاؤنڈیشن جو ہے کتنا اچھا کام کر رہی ہے اور اس حوالے سے جی کیا رائے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب یہ بتائیے کہ سمر فاؤنڈیشن جس طریقے سے کام کر رہی ہے تو کیسا لگتا ہے کہ مزید آگے جائے گی، لوگوں جو غریبوں کی مدد کر رہی ہے، اس حوالے سے کیا رہا ہے آپ کے خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سوشل ویلفیئر جو ہماری آرگنائز تنظیم ہے سمر فاؤنڈیشن کے نام سے، تو ان کے تعارفی حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک بات یہ ان کی خدمات کی، یہ ان کی خدمات آزاد کشمیر کے پورے پاکستان میں کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سمر فاؤنڈیشن واحد ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو کسی سے فنڈنگ نہیں لیتا، وہ اپنے مالی طور کے اوپر جو اپنا بزنس کرتے ہیں اس میں سے جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں سوشل ویلفیئر کے لیے اور غریب عوام کے لیے۔ اور ان کی جہاں خدمات کی بات کی جائے تو ان کی خدمات کی اگر دیکھیں تو کشمیر کے اندر انہوں نے بلا تفریق جو ہے وہاں پر ماشاءاللہ ترقیاتی طور کے اوپر بڑے کام کیے ہیں، سکولوں کے کام کیے ہیں، روڈ، مسجد اور اسپتال کے حوالے سے ان کا بڑا رول رہا ہے، اور بے روزگاروں کے لیے انہوں نے روزگار اسکیمیں بھی وہاں پر جو ہے نا وہاں دی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ایسے ادارے ہوں جو ایک بلا تفریق لوگوں کی خدمت کریں۔ اسے جہاں تک اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، لوگوں کی امیدیں جو وابستہ ہیں وہ سوشل ویلفیئر اداروں کے ساتھ ہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی تاریخ جو ہے ایک نازک مرحلے پہ چل رہی ہے۔ تو سمر فاؤنڈیشن جو کشمیر کے بارڈر کے علاقے ہیں، ان بارڈر کے علاقوں میں آپ دیکھا جائے تو وہاں پر انہوں نے وقتاً جا کے کشمیریوں کی مدد بھی کی ہے، اور جو بارڈر کے اوپر متاثرین فائرنگ ہوئی ہے جن علاقوں میں، تو انہوں نے ان علاقوں میں بھی جا کے انہوں نے بلا تفریق کام کیا ہے، اور وہ جو کام ان کا ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے تمام ہم جتنے بھی دوست ہیں، ہم ان کے پاس آئی سمر فاؤنڈیشن آئے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اس پہ ہمیں بڑا فخر بھی ہے، اور ماشاءاللہ بلا تفریق یہ کام کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی، تو اس سے جو ہے فاؤنڈیشنز کوئی ویلفیئر کی جانب سے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، ان کا اپنے بزنس سے جو بھی ہوتا ہے اس میں جا کے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اس حکومت میں جو فاؤنڈیشنز ہیں جو چل رہے ہیں، ان کو کتنا جو ہے وہ ہے کہ مل رہا ہے کہ کہیں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، مزید ان کی کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دور حکومت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ایز اے پاکستانیوں کے لیے یہ علامہ فکریہ ہے کہ یہ واحد وہ گورنمنٹ پاکستان کے اندر ہے کہ جو تو سوشل ویلفیئر اداروں کو کام کرنے سے روک رہی ہے۔ یہاں تو گورنمنٹیں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سوشل جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو آرگنائز کرتی ہیں، ان کے لیے فنڈنگ پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے راستے ہموار کرتی ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ وہ حکومت ہے کہ آپ دیکھ لیں، ہم یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں تو ہم ان کی مخالفت کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آئے دن آپ دیکھو تو انہوں نے کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور لگائی ہوں گی، چاہے وہ میڈیا کے اوپر لگی ہوں گی، چاہے وہ سوشل تنظیموں پہ لگی ہوں گی، چاہے وہ کسی سیاسی جو وہ لوگ جو نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوں گی، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو روکا گیا ہوگا۔ اب یہ ایجنڈا جو ہے گورنمنٹ کا، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ان کو جو آرگنائز تنظیمیں ہیں ان کو کام کرنے کے لیے ایک مخصوص فنڈنگ دینی چاہیے، تاکہ یہ لوگ غریبوں کی تہ تک جا سکتے ہیں اور یہ غریبوں تک غریب کا حق پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ آج جو ہے کہ سوشل ویلفیئر جو تنظیمیں ہیں ان کو گورنمنٹ ایک مختصر ایک فنڈ دینا چاہیے، اور تاکہ جا کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم ایز اے کشمیری، جو آج آپ نے کہا ایز اے حکومت کی بات ہے، تو ہم اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے کشمیر ہے، اگر ہمیں 72 سال میں اگر نقصان ہوا ہے تو پاکستان کے اندر صرف تحریک انصاف کی اور پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ سے ہوا ہے، جو انٹرنیشنل طور کے اوپر کشمیر کاز کا مقدمہ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے، اس طریقے سے پیش نہیں کر سکے کہ جو سفارتی طور کے اوپر جو ان کا ہمارا جو کشمیر کا مقدمہ تھا انٹرنیشنل تمام دنیا کے اندر، تو وہ اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کر سکے کہ جس طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ مسئلہ کشمیر ہمارا 72 سال میں کمزور ہوا ہے، جبکہ اس ٹائم کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ بڑی عروج پہ چلی گئی تھی۔ اور ہم سر آپ ایک بات اور بتائیں مجھے، جموں کشمیر کے اندر کم سے کم بھی تقریباً 200 دن گزرنے والے ہیں، ابھی تک جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بڑی ایک عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت پاکستان کو یا تحریک انصاف کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا ایسے اقدامات کرے جس سے جو ہے وہ اس جو مسائل سے نکلے اور باہر آ سکے؟
देखिए जी, इसकी एक ही बात हो सकती है कि जो हमारी जो हुकूमत है उसको खारजा पॉलिसी पे गौर करना चाहिए। खारजा पॉलिसी जब तक हमारी ठीक नहीं होगी, हम अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके इंटरनेशनल तौर के ऊपर अपना मुकदमा सही तरह पेश नहीं कर सकेंगे। देखें, इस वक्त जो अक़वाम आलम में जो अमन के अलमदार जो मुल्क हैं, उनको जब तक हम जाके ये बावर नहीं कराएंगे कि कश्मीर के अंदर जो इतना जुल्म हो रहा है, आप उस जुल्म के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ देखें। यहाँ दुनिया में अगर किसी जगह अगर परिंदा भी मर जाता है, आवान चीज भी मर जाती है, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो बाकायदे एक इंसानियत के वो जो है ना रूल और रेगुलेशन वो सामने ले आते हैं। हमें तो अफसोस ये आ जाता है उन ममालिक के ऊपर जो अमन के अलमदार हैं कि उनको ये नजर नहीं आता है कि कश्मीर के अंदर कितने दिनों से कर्फ्यू नाफज है और वहां के जो मुसलमान हैं या वहां के जो इंसानियत है वो किस तरह वक्त गुजार रहे होंगे। हम तो कहते हैं ये खारजा पॉलिसी पे हुकूमत को गौर करना चाहिए, अपना मुकदमा इंटरनेशनल तौर पे पेश करें कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, जो आज तक हमारी तारीख इंसाफ की गवर्नमेंट पेश नहीं कर सकी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है समर फाउंडेशन के चेयरमैन। आज हम इनसे बात करेंगे। आज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है आज़ाद कश्मीर के, अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है इनका, जो इतनी मेहनत करें और आगे माशाल्लाह वो जो मुस्तहद लोग हैं वहाँ तक उनकी मदद भी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन की सूरत में हो, चाहे राशन की सूरत में हो, चाहे वो माली इमदाद हो। तो इनसे बात करेंगे कि ये फाउंडेशन जो है किस तरीके से चला रहे हैं और इनको जो फंडिंग होती है, क्या फंडिंग बाहर से इनको मिल रही है या फिर अपनी मदद आपके तहत ये जो फाउंडेशन चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आज का माशाल्लाह जो प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया था और काफी अच्छे लोग यहाँ आए, मेहमान भी आए, जिससे जो जमातें जो हैं जितनी भी हैं उनसे भी इनका ताल्लुक है। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्कर्स की, इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, तो ये बताएं कि इस हुकूमत के अंदर कितना आप लोगों को जो है ये परेशानी हो रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी पाबंदियां लग चुकी है हर काम के ऊपर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कितने बआसानी आप काम करें जो फाउंडेशन चला रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि मेरी फाउंडेशन को रिफ्लाई काम कर, तो हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और ना ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। बड़े भरपूर तरीके से जो है ना हमारी सपोर्ट की जा रही है। जहाँ तक हमारे समाज की जो काम हो रही है, बस ये तो चेयरमैन समर फाउंडेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमें किसी भी किस्म की कोई ना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ना हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से कि हमें किसी किस्म का रोका जा रहा हो, बल्कि हमारे उस काम को ये सराह रहे हैं। उसका मुंह बोलता सबूत इस वक्त आप आज देख रहे हैं। ये तमाम के तमाम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासी जमात से वाबस्ता है। ये तमाम के तमाम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासी जमात के बड़े जिम्मेदारान हैं। जैसे जनाब जावेद अयूब साहब के एजाज़ में जो हमने आज इवेंट रखा, इसमें आज तमाम की तमाम कश्मीरी कम्युनिटी को हमने मदबू किया, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे समाजी हो, या किसी भी शोबाजात से तलक रखते हों। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि जो बाजार से बात है, जो फंडिंग का अगर बात की जाए तो बाहर से तो कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिल रही है, अपनी मदद अपनी जो आपके बिजनेस है उसी हिसाब से फाउंडेशन चला रहे हैं। देखिए, आज़ाद कश्मीर की ये पहली फाउंडेशन है जो अपनी मदद आपके तहत करे। हम किसी से कोई फंडिंग नहीं कर रहे, हम अपनी जो मेहनत से काम करते हैं उसी में से हम अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें और अल्लाह का शुक्र अल्लाह तबारक तआला हमें दे रहा है और हम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में गरीब और मिस्कीन की खिदमत करते हैं। आपके चैनल की ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी किसी से कोई फंडिंग नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत इस वक्त आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह हम समर एम्बुलेंस सर्विसेज दे चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह हम समर मेडिकल कम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। आज़ाद कश्मीर में हम 200 से ज़्यादा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अडॉप्ट कर चुके हैं। गरीब और मिस्कीन की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमानी करें, जिसका मुंह बोलता सबूत ये आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले, आज़ाद कश्मीर के नाम पर सियासत करने वालों ने आज न सिर्फ समर सराज को बल्कि समर फाउंडेशन के तमाम मेहमानान को सराहा और उन गरीबों और मिस्कीनों की जो हम खिदमत कर रहे हैं, आज समर हाउस पे खड़े होकर ये कहते हैं कि जो भी बंदा आज़ाद कश्मीर के गरीब और मिस्कीन की खिदमत करेगा हम उसको सराहेंगे। तो आपके चैनल के तमाम लोगों का, बुजुर्गों का, भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस काम को जो सराहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर ये बताइएगा, जो लोग गरीब लोग, मिस्कीन जो है, मुस्तहद लोग हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो माली इमदाद हो या फिर कोई मेडिसिन की सूरत में हो, तो वो किस तरीके से आपसे जो है वो रास्ता कर सकते हैं और किस तरीके से वो आपको बआसानी दे सकते हैं? देखिए, जहाँ हमारा एक प्रोसीजर है, कोई भी बंदा अगर ये समझता है कि इस वक्त यहाँ पे समर फाउंडेशन की ज़रूरत है तो एक एप्लीकेशन देता है, हमारी टीम जाती है, वो वेरीफाई करती है, मुतल्लिका इंतजामिया से उनसे एनओसी लेती है आया कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। तो जब ये तमाम के तमाम प्रोसीजर क्लियर हो जाता है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत उनकी खिदमत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, कराची हो, आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी हो। अच्छा सर, मकबूजा कश्मीर में कम से कम 200 दिन हो गए, आज तक हमारे जितने मुसलमान बहन भाई हैं एक बड़ी अजाब की जिंदगी यानी कि वहाँ गुजार रहे हैं। वहाँ हर चीज़ बंद है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या फिर तालीम के इदारे हों। अगर बात की जाए वहाँ जो सर्विस होती है इंटरनेट की, वो भी अभी तक मुअत्तल है। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ऐसा क्या इकदाम करे जिससे हमारे जो वहाँ जो भाई फंसे हुए हैं, जो हमारे जो वहाँ लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, आज तक जो वो शहीद हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या इकदाम उठाए जो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके? देखिए, जहाँ तक एक कश्मीरी होने के नाते मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के बारे में बता सकूं। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अपने मकबूजा कश्मीर के उन बहन भाइयों के साथ जो 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर
गुजर चुका है, उनके साथ जो जुल्म सितम हो रही है, मेरी माँओं मेरी बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक कश्मीरी होने के नाते या पाकिस्तानी होने के नाते मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ जो कोई बात कर सकूं या उनका मुकदमा आप तक पहुंचा सकूं। आपके जरिए और आपके चैनल के जरिए मैं बता देना चाहता हूं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की इस वक्त नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर में कफन की जगह पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी मेरी माओ और मेरी बहनों की इज्जतें लुट रही हैं, मगर पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो है इस वक्त नारा लग रहा है। तो इसमें मेरे समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को और उन तमाम की तमाम सियासी जमातों को जो पाकिस्तान के नाम पर सियासत करती हैं, जो आज़ाद कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं, इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ में किसी भी किस्म की कोई कर्फ्यू में कोई जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो मैं इस चीज़ का हुकूमत पाकिस्तान से ये समझता हूँ कि उन्हें अपना रोल मजीद अपना बेहतर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को कश्मीरी इशूज़ पे मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में जाकर मुकदमा लड़ा कश्मीर के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं। हर तरह से कश्मीर पाकिस्तान की अवाम में कश्मीर के हवाले से बताया, हत्ता कि आधा घंटे का एहतजाज धरना भी देकर यह बताया ना तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उससे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में जो इंडिया की बर्बरियत हो रही है उसमें कोई कमी नहीं आई। ना पूरे पाकिस्तान की अवाम ने खड़ा होकर जो बात की कि हम मकबूजा कश्मीर के साथ हैं उसके बावजूद भी कोई कमी नहीं आई। आधे घंटे के एहतजाज से भी कोई कमी नहीं आई। मैं ये समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कश्मीरियों के लिए और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है इसके लिए कोई लाएअमल तय करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो जितने भी सियासी जमात के सरबराहान यहाँ बैठे हैं इनसे एक वसीयत कश्मीरी में इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर सियासी जमात को अपना रोल प्ले करना चाहिए, हर सियासी जमात को हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो हमारे माओ बहनों के साथ की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, इसके लिए कोई लाएअमल तय करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो जुल्म सितम है वो कम हो सके। मेरे ख्याल से ये काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर सकता है। तो मैं आपके चैनल के जरिए अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सियासी जमात के जो लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए आवाज़ बने हो रहा है। वही इंडिया की बर्बरियत हो रही है, वही बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वही घरों हमारे कश्मीरी भाइयों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहा। 5 अगस्त से लेकर आज तक इंडिया की बर्बरियत जारी है, उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आई। अगर कोई ये कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से बर्बरियत, इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर के कत्ले आम हो रहा है, माओ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, अभी तक उसमें कोई भी किसी किस्म की कमी नहीं आई। बाकी जहाँ तक जो बात इस वक्त जो ये समझो आपका दूसरा सवाल है कि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर को भेज दिया। मैं कश्मीरी होने के नाते, क्योंकि जब किसी का घर जल रहा हो, जब किसी की माओ बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा हो और फिर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अपने कफन की जगह पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल किया जा रहा हो, पूरे उम्मत मुसलमान का सबसे एटमी पावर सिर्फ पाकिस्तान हो, उस तरीके से अगर देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान अभी वो रोल प्ले नहीं कर सकी है। और कश्मीरी जो फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर होगा और कश्मीरी मकबूजा कश्मीरी ये फैसला दे रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। न कश्मीर को किसी को बेचने देंगे, न कश्मीर को तकसीम करने देंगे। हम कश्मीरी इस अहद के साथ, मैं आपको बताऊं जहां से मेरा तल्लक है, मेरा आज़ाद कश्मीर के तल्लक है, मेरा जिस वादी से तल्लक है वादी नीलम से, वहां पे भी इस वक्त इंडिया की बर्बरियत है। इंडिया आए रोज सिविल आबादी पर जो है ना फायरिंग कर रहा है, वहाँ के लोगों को, बच्चों को स्कूलों में नहीं जाने दे रहा, हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो बड़ी नासाज है, बड़े परेशान है कश्मीरी, चाहे वो इस पार हों या इस पार हों। आपके चैनल के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से, तमाम सियासी जमातों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके मकबूजा कश्मीर के भाइयों के लिए और कश्मीर के लिए अपना कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है। नाज़रीन, ये थे समर फाउंडेशन के जो चेयरमैन, उनके ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अगर बात की जाए हुकूमत पाकिस्तान की तो उन्होंने भी अपना रोल अदा करा है।